Starting with the blessed name of Allah subhanahu wa ta'ala, peace and salutation upon our beloved Prophet, peace be upon him. Assalamu alaikum. I, Ms. Rabia, welcome you in the series of all subjects lectures based on single national curriculum from grade 1 up to grade 5. In this video, I am going to solve the exercise of Unit 3, State and Government of Social Studies Book 5. Let's start. Question 1. Write short answers to these questions. Number 1. Why is the federal government necessary? के वफाकी हुकूमत क्यों ज़रूरी है? Answer is, it is the central government of a country. It looks after the national economy. It runs the national administration. It makes the foreign policies. जी, वफाकी हुकूमत क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये किसी मुल्क की मरकज़ी हुकूमत होती है, ये कौमी मुआशत की देखभाल करती है, ये कौमी इंतज़ामिया को चलाती है और ये खारजा पॉलिसी बनाती है, इसलिए वफाकी हुकूमत ज़रूरी है। Question 2. According to the 1973 Constitution, state any 3 rights of the citizens of Pakistan. कि 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों के कोई से 3 हकूक तहरीर करें। Answer is, number 1, protection of life and property. Number 2, provision of health and educational facilities. Number 3, right to vote. Number 4, religious independence. कि जान और माल की हिफाजत, सेहत और तालीमी सहूलतें मुहैया करना, वोट का हक और मजहबी आज़ादी। Short question number 3. Make a list of the powers of the provincial government. के सूबाई हुकूमत के इख्तियारात की फहरिस्त बनाएं। Number 1. It makes the rules and regulations for the province. Number 2. It is responsible for law and order implementation. Number 3. It looks after the provincial revenue. Number 4. It controls the provincial policies. जी, सूबाई हुकूमत के इख्तियारात की फहरिस्त क्या है कि ये सूबे के कवायद और ज़वाबित बनाती है, ये अमन व अमान का नफाज की जिम्मेदार होती है ये हुकूमत, और सूबाई आमदनी की देखभाल करती है और सूबाई पॉलिसियों को कंट्रोल करती है। Now detailed questions answers. How does the Constitution and its implementation ensure the provision of basic human rights? आइन और इसका इत्तलाक किस तरह बुनियादी इंसानी हकूक की फराहमी यकीनी बनाता है? Answer is, a constitution is a set of basic laws and principles according to which a state or a country has to be governed. Pakistan is an Islamic republic and its constitution has been formulated according to Islamic principles. Pakistan's official religion is Islam. Because there is a majority of Muslims here, as well as followers of other religions have basic rights according to the Constitution. Because according to the Constitution, every citizen has the right to live according to their beliefs. He has the right to life and property without discrimination. जी, आइन और इसका इत्तलाक किस तरह बुनियादी इंसानी हुकूक की फराहमी को यकीनी बनाता है? आइन बुनियादी कवानीन और असूलों का ऐसा मजमूआ होता है जिसके मुताबिक किसी रियासत या मुल्क का नज़्म नस्क चलाना होता है। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी मुल्क है और इसका आइन इस्लामी असूलों के मुताबिक मुरतब किया गया है।
पाकिस्तान का सरकारी मजहब इस्लाम है क्योंकि यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है। इसके साथ साथ दीगर मज़ाहिब के मानने वालों को भी आइन के मुताबिक बुनियादी हकूक हासिल हैं, क्योंकि आइन के मुताबिक हर शहरी को अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक है। इन्हीं की रूह से हर शहरी को मजहब की तफरीक के बगैर जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल है। इन लोगों को इनकी जिम्मेदारियों से आगाह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ आ पॉलिटिकल पार्टीज, कि सियासी जमातों के जो फंक्शंस हैं, अफ़ाल हैं, काम है, वो वाज़ेह करें। आंसर इज फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। लेट्स लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। Political parties work according to their manifesto. They bring people together on one platform by creating political awareness among the people. Participate in elections and solve people's problem after being elected. After forming the government, they work for the welfare of the country and the nation. Represent the country internationally. जी, सियासी जमातों के अफ़ाल क्या हैं? सियासी जमातें अपने मंशूर के मुताबिक काम करती हैं, लोगों में सियासी शऊर पैदा करके इन्हें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करती हैं, इंतखाब में हिस्सा लेती हैं और मुंतखब होकर लोगों के मसाइल को हल करती हैं। हुकूमत कायम करने के बाद ये मुल्क व कौम की फलाह के लिए काम करती हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। स्ट्रक्चर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ये देख लें। देखिए, फर्स्ट पे लेजिस्लेचर, फिर है पार्लियामेंट, उसके नीचे है प्रेसिडेंट, फिर सेनेट है और नेशनल असेंबली। फिर दूसरे कॉलम में एग्जीक्यूटिव में देखिए प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं। फिर उसके बाद जो थर्ड वाला हमारा है कॉलम, उसमें जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। ये फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, आप इसको देख लें। नाउ ऑब्जेक्टिव पोर्शन, mark the correct answer using tick. General elections are held in Pakistan. A. After 2 years. B. After 3 years. C. After 4 years. D. After 5 years. Correct option is after 5 years. D. कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुनक्कद किए जाते हैं कितने? 5 साल बाद। Number 2. The Constitution of Dash is currently implemented in Pakistan. कि पाकिस्तान में इस वक्त कौन सा आइन नाफिज है? A. 1956, B. 1962, C. 1973, D. 1958. Correct option is C. 1973. Number 3. लेजिस्लेचर होल्ड्स द पावर ऑफ। मुकन्नना के पास इख्तियार है ए. लॉ मेकिंग, बी. लॉ इन्फोर्समेंट, सी. प्रोविजन ऑफ जस्टिस, डी. हियरिंग ऑफ केसेस। कानून बनाने का, कानून नाफिज करने का, इंसाफ की फरहमी का या मुकदमात की समाअत का। करेक्ट ऑप्शन इज ए. लॉ मेकिंग, कानून बनाने का। Number 4. Understand the Constitution. Child labor is prohibited. Under the Constitution, child labor is prohibited. के आइन के मुताबिक बच्चों से मजदूरी करवाना ममनू है। A. Under 14 years of age. B. Under 15 years of age. C. Under 16 years of age. D. Under 17 years of age. जी, करेक्ट ऑप्शन इज ए. अंडर 14 years of age की 14 साल की उम्र में बच्चों से मजदूरी करवाना ममनू है, ये आइन के मुताबिक है। नंबर 5. A set of basic principles to govern a country is called.
कि किसी रियासत या मुल्क का नज़्म व नस्क चलाने के लिए बुनियादी असूलों का मजमुआ कहलाता है? ए. स्टेट प्रिंसिपल, बी. प्रिंसिपल एंड लॉज, सी. गवर्नमेंट, डी. कॉन्स्टिट्यूशन। जी. रियासती असूल या असूल कवानीन या हुकूमत या आइन। करेक्ट ऑप्शन इज डी. कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आइन। कि किसी रियासत या मुल्क का नज़्म व नस्क चलाने के लिए बुनियादी असूलों का जो मजमुआ है उसको आइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क टिक इन फ्रंट ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस इन फ्रंट ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नंबर 1, द प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डिक्टेटरशिप। क्रॉस। के पसंदीदा तर्ज हुकूमत आमरीत है। गलत। नंबर 2, द सिस्टम ऑफ मोनोक्री इज इन्फोर्स्ड इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान में बादशाहत का निज़ाम नाफिज है। क्रॉस। नंबर 3, ऑल द लॉज ऑफ द कंट्री आर बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। कि मुल्क के तमाम कवानीन आईनी असूलों के मुताबिक मुरतब किए गए हैं। टिक। नेक्स्ट इज द फेडरल गवर्नमेंट acts as a bridge between the provincial government। कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के दरमियान पुल का किरदार अदा करती है। टिक। नंबर 5, every political party has its own ideology and manifesto। कि हर सियासी जमात का अपना एक खास नजरिया और मंशूर होता है। इट्स ट्रू। Now question 3, write the names of any 3 ministries and their ministers। कि कोई सी 3 वजारतों के और उनके वज़रा के नाम लिखें। नंबर 1, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर नेम इज शफकत महमूद। नंबर 2, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर नेम इज परवेज खटक। नंबर 3, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, Minister name is Sheikh Rashid Ahmed. Thanks for watching this video till the end. Like and share my videos and subscribe this channel for watching more videos based on single national curriculum. Goodbye. Allah Hafiz.